Good morning, student. Welcome to you in your political science class. As you know, in our last classes, we completed chapter number 5, and before that, we completed chapter number 6, International Organization and Contemporary South Asia. Today, we are going to start a new chapter of our book, Contemporary World Politics. As you know, this book is going on. So we are going to start chapter number 4. The name of this chapter is Alternative Centers of Power. So Alternative Centers of Power is our 4th chapter of Contemporary World Politics. And you know, after the end of the Cold War, you read about the Cold War in your chapter number 1, Era of Cold War, and in the chapter number 2, the end of bipolarity, in which you read that there were, after the Second World War, which took place from 1939 to 1945, there were, the whole world was divided into two blocks. So, and there was Cold War between the two USA and USSR, but after the 1990, there was the end of Cold War. There was the disintegration of the USSR and only one bloc left, that was US. So, in order to reduce the influence of US, as US has set up its domination in the world politics, so to reduce the powers of the US, alternative centers of power, politically and economically, were set up in the world. Alternative centers of power were set up against US. Alternative centers of powers were developed, and these were two. In this chapter, we will read about that two organizations which were set up as alternative centers of powers against USA. One was EU, European Union, that was formed in 1992 in Europe, and one another was Association of Southeast Asian Nation. Association of Southeast Asian Nations की जो एसोसिएशन थी वो फॉर्म हुई. तो in this part, which today we are going to start one part, that is European Union. So we are going to start European Union today. आज हम यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं अपनी इस क्लास में. तो यूरोपियन यूनियन क्या थी, कैसे बनी, किस पर्पस से बनी, और कौन कौन से मेंबर कंट्रीज उसके मेंबर्स बन गए. सो और इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल रीड अबाउट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियंस, एंड third part of the chapter is about China's influence. China is also playing an important role in the world politics also. So what is the role of China? We will read also about it in this chapter, but later on. So today we are going to start European Union. देखिए, हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दिस वॉर shattered many of the assumptions and structures in which the European states had based their relation. जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ, तो जितने भी यूरोपियन नेशंस ने जिस अजम्पशंस की, जिस धारणाओं पे उन्होंने यूरोपियन नेशन की फॉर्मेशन की थी, जिस स्ट्रक्चर पे उन्होंने यूरोपियन नेशन फॉर्म किया था, वो सब शेटर्ड हो गए. बिकॉज इन द आफ्टर द वॉर, आइदर दे विन द वॉर, जो अलाइड्स थे, दे विन द वॉर, यूरोपियन नेशन विन द वॉर, Britain, France, they win the war, but it shattered their economy. और
इट शेल्टर्ड देयर इकोनॉमी, इससे जो पैसा इतना खर्च हो गया कि उनकी इकोनॉमी जो थी वो शेल्टर्ड हो गई। और many of the assumptions and structures on which the European nation had formed that also been destroyed, that जिनके ऊपर उन्होंने जिस धारणाओं पे, जिस स्ट्रक्चर पे यूरोपियन नेशन बने थे वो सब शेल्टर्ड हो गए और उनकी इकोनॉमी भी शेल्टर्ड हो गई। कौन सी वॉर के बाद? दिस वॉज आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो उसके बाद जो यूरोपियन इंटीग्रेशन थी, दैट आफ्टर 1945 was started, यूरोपियन इंटीग्रेशन जो थी 1945 के बाद शुरू कैसे हुई? क्योंकि आफ्टर एज इट वाज देयर वाज द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर वाज स्टार्टेड एट दैट टाइम। तो अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप्स इकोनॉमी अंडर वन प्लान। अमेरिका ने हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए यूरोपियन नेशन को एक प्लान के अंदर, क्योंकि उनकी इकोनॉमी शेल्टर्ड हो गई थी, उनका स्ट्रक्चर जो जिसके ऊपर वो बने थे वो सब खत्म हो गया था। तो एक प्लान जो थी अमेरिका के द्वारा स्टार्ट की गई। द नेम ऑफ दिस प्लान वाज मार्शल प्लान। Note down, this was Marshall Plan, and under not only this, the US also created a military organization. You read this one also in your earlier classes. That was NATO, North Atlantic Treaty Organization. तो North Atlantic Treaty Organization जो था उनके द्वारा सेटअप किया गया अमेरिका के द्वारा, जो कि मिलिट्री से कंट्रीज की हेल्प करेगा। बट आफ्टर दैट अंडर मार्शल प्लान वन अनदर ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म। दिस वाज OOEEC। what is the full form of OOEEC? Organization for European Economic Cooperation। Organization for European Economic Cooperation। This was set up in 1948। ये 1948 में सेटअप किया गया यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन OOEEC। तो ये what was the purpose of this OOEEC? The main purpose of this was to promote the economic cooperation among the nations, especially यूरोपियन कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना। तो it became a forum where the Western European states began to cooperate on trade and economic issues। इसके थ्रू ये जो कंट्रीज थे उनमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो थी वो बढ़नी शुरू हो गई। इसने एक फोरम का काम किया ओवरसीज ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड को बढ़ाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज के बीच में। आफ्टर दैट इन 1949 काउंसिल ऑफ यूरोप COE ये COE काउंसिल ऑफ यूरोप was founded in 1949। This became a political organization। जैसे ये तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था, ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गया जो कि 1949 में फॉर्म हुआ। उसके बाद आफ्टर दैट one another organization was formed by the European nation। This was European Economic Community। European Economic EEC again EEC। This European Economic Community was set up in 1957। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो फॉर्म किए गए यूरोप के में। और इनके बारे में कब कब कौन सा कंट्रीज का मेंबर बना, द टाइम लाइन इज गिवन इन अवर बुक। हमारी बुक के अंदर इसे पेज नंबर 54 जस्ट सी टाइम लाइन ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन। यूरोपियन इंटीग्रेशन की जो है टाइम लाइन्स ये दी गई है कि कौन सा कंट्री जो था वो कब कब इनका मेंबर जो था वो बना। तो उसके बाद अब हमारा जो मेन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हम रीड कर रहे हैं दैट इज यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन was formed in 1992। This was formed in 1992
जैसे ही देयर वाज द कोलैप्स ऑफ द सोवियत ब्लॉक जैसे ही कोलैप्स हुआ, खत्म हो गया, तो उस दिस रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन और न्यू यूनियन. दिस वाज यूरोपियन यूनियन. व्हेन इट वाज formed in 1992. So the foundation, what was the aim of this European Union? इसका aim क्या था? The foundation was laid for a common foreign and security policy. कि जितने भी member country होंगे यूरोपियन यूनियन के, they will have common security and economic security as well as foreign policy, and they will cooperate on justice and home affairs, and they will have a common currency. उनकी एक ही कॉमन करेंसी होगी, और इसके साथ साथ वो फॉरेन और मिलिट्री मैटर्स के ऊपर, अगर हम कहें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ मैटर्स के ऊपर भी आपस में कोऑपरेट करेंगे, कॉमन करेंसी होगी, और इंटरनल अफेयर्स में भी, जस्टिस में भी वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे. इन दिस वे यूरोपियन यूनियन जो थी वो फॉर्म हो गई 1992 में आफ्टर सो मैनी ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद यूरोपियन यूनियन जो थी दैट इवॉल्व ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू पॉलिटिकल वन. दिस यूनियन बिकम a political union from economic to political union, or this has started to act more as a nation state. इसने नेशन स्टेट से भी ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया. क्यों? क्योंकि अटेम्प्ट जो किए गए, अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक इट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो नहीं बना, बट इसके अलावा इट हैज़ इट्स ओन फ्लैग. इसका अपना एक जो था फ्लैग, नेशनल एंथम, it has its own flag, national anthem and its own currency. इसका अपना एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से धीरे धीरे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में बदल गया. और इसका पहले ये सोचा था कि एक नेशन स्टेट के तौर पे इसने काम करना शुरू कर दिया. धीरे धीरे क्या हुआ कि फ्रॉम it has its own flag, national anthem and its own common currency known as euro. यूरो जो थी इसकी एक कॉमन करेंसी जो थी वो बन गई. और धीरे धीरे जितने भी कंट्रीज यूएसएसआर से टूटे, यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद बहुत सारे कंट्रीज के मेंबर बन गए. जस्ट सी द मैप ऑन योर बुक. ये देखिए आपकी बुक के अंदर मैप दिया गया है. दिस कलर जो है मूव कलर, दीज आर द ओल्डर नेशन. ये ओल्डर नेशन है. जैसे जाएगी इनमें से कौन से? यूएस, आयरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, लक्समबर्ग, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, इटली, ऑस्ट्रिया. ये दीज वर था स्वीडन, फिनलैंड. ये तो सारे जो थे वो ओल्डर कंट्री थे. लेकिन जो नए कंट्री बने यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद, दे वर चेक रिपब्लिक, पोलैंड, लैटविया, लिथुआनिया. ये ऑल दिस कंट्री बिकम द न्यू कंट्री. तो धीरे धीरे इसके जो मेंबर कंट्रीज थे वो भी बढ़ने शुरू हो गए. और उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन थी, दिस हैज़ इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस. धीरे धीरे इसका जो इन्फ्लुएंस था वो धीरे धीरे इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया. कैसे? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक, मिलिट्री इन्फ्लुएंस. और ये दिस बिकम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी. ये वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी बन गई. और इट हैज़ द जीडीपी. इसकी जो जीडीपी थी दैट वाज $12 ट्रिलियन इन 2005. इसकी जो जीडीपी थी वो यूएसए से भी ज़्यादा थी. कितनी? $12 ट्रिलियन इन 2005. और अगर हम इसकी करेंसी की बात करें, इट हैज़ इट्स करेंसी यूरो विच पॉजेज ए डेंजर, जिसने कि डेंजर पोज किया यूएस डॉलर के लिए. यूरो जो थी उसने यूएस डॉलर के लिए डेंजर पोज किया. और जो वर्ल्ड के ट्रेड में इसका शेयर था दैट वाज 3 टाइम लार्जर देन ऑफ द यूएस.
world, its share in the world trade was 3 times larger than the share of US. US के शेयर से जिसका जो था वो 3 टाइम जो था वो ज़्यादा हो गया. और its economic part gave influence to its closest neighbors like एशिया एंड अफ्रीका में इसकी इकोनॉमिक पावर का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया और धीरे धीरे इसका वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल हो गया जो कि ट्रेड को बढ़ाना चाहता था. बट वाज दिस ऑर्गेनाइजेशन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मेन मकसद है कि ट्रेड को कंट्रीज में प्रमोट करना. तो इट बिकम एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. यूरोपियन यूनियन जो थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी. अब अगर हम यूरोपियन यूनियन के और इट हैज़ द यूरोपियन यूनियन ऑल्सो हैज़ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस. इसका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि बहुत कुछ कंट्रीज़ जो थे जैसे कि इनमें से जो यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज़ थे दे वर द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. यू रीड अबाउट द सिक्योरिटी काउंसिल इन योर चैप्टर नंबर 6. आपने चैप्टर नंबर 6 में यूएन के बारे में पढ़ा और उस यूएन में आपने कहा कि some 5 countries are there which are the permanent member of the Security Council. Among these England, France, USA, चाइना, ये जर्मनी, ये कंट्रीज़ की हमने जो है वो बात की. लेकिन इंग्लैंड और फ्रांस जो हैं दे वर द मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड दे वर द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. इसके अलावा बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे ऐसे मेंबर्स भी थे दोज हू वर द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं वो भी 10 हैं जो कि 2 ईयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस था और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस था यूरोपियन यूनियन का वो भी धीरे धीरे बढ़ता रहा. और अगर हम ये बात करें कि मिलिट्री यूरोपियन यूनियन की बात करें तो मिलिट्री जो यूरोपियन यूनियन थी इसकी आर्म फोर्सेस जो थी दैट वाज द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. सेकंड लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस इन द वर्ल्ड. यूरोपियन यूनियन ने अपनी आर्म फोर्सेस जो थी वो डेवलप की और उसका नंबर वर्ल्ड में कितना था सेकंड लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस ऑफ द यूरोपियन यूनियन. और उतना ही नहीं आर्म फोर्सेस के साथ साथ जो था इसका इट हैज़ इट्स ओन दे वर स्पेंडिंग ऑन डिफेंस पे भी इसके कंट्रीज बहुत स्पेंड कर रहे थे जैसे कि इंग्लैंड और फ्रांस. और उन्होंने ब्रिटेन फ्रांस दे हैव न्यूक्लियर वेपन्स एंड अप्रोक्सीमेटली 550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स. तो उनकी मिलिट्री दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग. सेकेंड लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस मिलिट्री भी उन्होंने बहुत डेवलप कर लिया था. बिसाइड दिस दे हैव मेड डेवलपमेंट इन स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. उन्होंने स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली. तो इन दिस वे नॉट ओनली दिस लेकिन अगर हम ऐसे सुपरनेशन की बात करें यूरोपियन यूनियन की तो हम कहेंगे कि यूरोपियन यूनियन जो थी दैट इज एबल टू इंटरवेंशन इन द पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल एरियाज. लेकिन बट बहुत कि इट वाज इंटरफेयरिंग in the military, political, economic area, but in many areas, its member states have their own foreign relation. इनके member state जो थे वो चाहते थे कि उनका अपना foreign relation हो. जैसे कि अगर हम बात करें कि ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हुए दैट वाज टॉनी ब्लेयर जो थे उनके अमेरिका के साथ अपनी पार्टनरशिप थी और इराक इशू को लेकर. और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ थे वो चाहते थे कि हम अपने जो है रिलेशंस फॉरेन कंट्रीज़ के साथ अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे नॉट अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन यूनियन. तो जैसे कि कुछ कंट्रीज़ जो थे दे ऑल्सो स्टार्टेड अ वन पॉलिसी डीप सीटेड यूरोप. ये पॉलिसी थी स्केप्टिसिज्म
ये स्केप्टिसिज्म क्या होता है? स्केप्टिसिज्म इज फीलिंग ऑफ डाउट अबाउट अदर समथिंग समवन, कि किसी को किसी के बारे में जब डाउट होता है तो दिस इज स्केप्टिसिज्म। ऐसी पॉलिसीज जो थी वो कुछ यूरोपियन नेशन ने फॉर्म की। फॉर एग्जाम्पल ये कैसे पॉलिसी थी कि जो ब्रिटेन की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हुए मार्गरेट थैचर जो थी, शी वांट्स टू कीप, वो चाहती थी, शी वांट्स टू कीप द यूके आउट ऑफ द यूरोपियन मार्केट। वो यूरोपियन मार्केट से यूके को आउट रखना चाहती थी। ऐसे ही कुछ कंट्रीज लाइक डेनमार्क एंड स्वीडन दे ऑल्सो रेजिस्टेड सम ट्रीटीज, उन्होंने भी कुछ ट्रीटीज का रेसिस्ट किया और दे वर नॉट रेडी टू अडॉप्ट यूरो। वो यूरो को एक कॉमन करेंसी, डेनमार्क Sweden, they also resisted some policies, some treaties, and they were not ready to adopt euro as common currency. वो common currency के तौर पे यूरो को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो in this way we can say कि this limit the ability of the European Union. इससे जो यूरोपियन यूनियन की ability थी that was limited। कैसे लिमिटेड होगी? टू एक्ट इन मैटर्स ऑफ फॉरेन रिलेशन एंड डिफेंस। फॉरेन रिलेशन को लेकर और डिफेंस को लेकर इनकी एबिलिटी कम हो गई, जब इनके अपने ही मेंबर कंट्रीज जो थे वो नहीं चाहते थे कि वो अपने हिसाब से वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाएंगे, जबकि मेन मकसद क्या था? व्हाई दे विल सेट अप यूरोपियन यूनियन इन ऑर्डर फॉर ए कॉमन फॉरेन रिलेशन, कॉमन करेंसी। लेकिन उसी में ही कुछ कंट्री उस करेंसी को मानने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हीं में से कुछ अपने अपने रिलेशन कायम कर रहे थे। सो इन दिस वे वी कंप्लीटेड आवर दिस चैप्टर, दैट इज अल्टरनेटिव सेक्टर्स ऑफ आवर्स। फर्स्ट पार्ट यूरोपियन यूनियन, नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट द एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एंड रोल ऑफ चाइना, एंड वी विल डू दैट पार्ट in our next class. So all of you are supposed to read the chapter, complete the assignments and learn the chapter which we covered earlier and discussed in our doubt class, that was international organization. All of you are supposed to read the chapter, learn it, do the assignment